Good morning, everyone. So, today we'll start again binomial theorem. Last class, all of you have seen the binomial theorem. That one again, I am just recap this the theorem. N is a positive, N is a positive integral index. N is a positive integral index. Then x plus y whole to the power n is equal to nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1, and y comes next nc2 and x to the power n minus 2, and then we have y square, and so on it goes. At the end it is going to be ncn y to the power n. So this all of you came to know that n is a positive integral index. Fine, it should be positive integral index. Let's say if you have to expand x plus y whole to the power 3, so 3 or 6, whatever it is, 3 is positive integral index, integer as well as positive. Let's say we have to expand x minus y whole to the power 6. So this is again positive integral. Fine, integer or integral you can say. So all these expansion you can expand by this binomial theorem. Correct? Now, the next thing what all of you came to know, the formula NCR. Fine, this is factorial n upon factorial r into n minus r. Fine, this is what a formula of NCR. Let's say suppose you have to expand 4c2. We have Pascal triangle also, but this way also you can expand factorial 4 factorial 2 into factorial 4 minus 2 factorial. Fine. Now factorial 4 you can write 4 into 3 into factorial 2. You stop here because denominator we have 2, factorial 2 is also there, and here also factorial 2. So what left? Factorial 2 get cancelled, and 2 into 1 and 2 4, this would get cancelled. What left? This is 6. Or you have Pascal's triangle also, from there also you can get 4c2. But what happens, sometimes situation comes like this way, that values are bigger. Let's say suppose you have to calculate 13c4, and at this time you don't have a Pascal till A13. What I suggested, all of you expand Pascal till 7 or 8 max to max, but 13c4 you don't have Pascal and you are not supposed to make till 13 Pascals. So for these type of 13c4, what you can do, use the formula factorial n factorial r factorial n minus r. This is going to be factorial 9. Now you expand 13 into 11, fine, into 10, 13 into 12 basically, 11 into 10, and into factorial 9. Fine, this will be 9. And here we have 4 into 3 into 2 into 1 into factorial 9. This and this get cancelled, and rest of the term you can simplify. 4 3 12 get cancelled, 2 2 5s are also, and then whatever it is left, 3 into 11 into 5, and then you calculate and get the answer. So this will give you the value of 13c4. Fine. So there, these information what we shared in last class, I believe all of you understood. Fine. So this is the binomial theorem, binomial expansion, where x plus y, if it is minus, so we put alternate plus minus. Correct? And none but least, that is Pascal, that all of you have shown me in the other day also. How we go? 1 2 1. Fine. 1 3 3 1, and same way 1 4 6 4 1, and so on. Correct? This way all of you have shown us the Pascal triangle.
The meaning is this one is 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, fine, and 4C4. In this, I told you that couple of shortcut also you have to remember, like NC0 equals to NCN, both are 1. Let's say 3C0 and 3C3 both are equal to 1, correct? So these shortcut also you have to remember, so that whenever such value came, you will write the value 1, correct? So in this fashion there, we came to know these values, these formula. Those formulas are very important that you must to remember. This Pascal also, because these things we require in binomial theorem there. So once again, what I will do, we'll go for some more problems where we will expand the binomial, correct? Look at this with the help of this binomial theorem, where we have mentioned n is a positive integral index, then x plus y whole n, nc0 x to the power n, nc1 x to the power n minus y, and so on, ncn y to the power n, correct? So dear, ये बातें आपने लास्ट क्लास में समझी है, अच्छे से समझ लिया है। तो अब और कुछ सम देख लें इस पे। अब एक मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सर बाइनोमियल थ्योरम पर एनी इंडेक्स भी होता है? लेट्स से एक्स प्लस वाई टू द पावर -1 हो निकाल सकते हैं, या कह सकते हो आप एक्स प्लस वाई पे होल टू द पावर -2/3। यस, इन सबों के भी वैल्यू निकलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, किसी भी पावर के लिए। दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, चैप्टर के एंड में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, कोई से भी पावर के लिए वी कैन एक्सपैंड बाइनोमियल, करेक्ट? नाउ, so up till we have seen this binomial we can expand. Let's say I'm starting your chapter exercise 4.2 from your textbook, page number 77, correct? This is your chapter exercise 4.2. The first question it is value of √3 plus, this is √3 plus √2 होल टू दी पावर 4। अब इसकी वैल्यू चाहिए डियर, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे। फॉर्मूला लगा दो आप, 4C0, ठीक है, 4 पावर है, NC0 x यहाँ क्या है, √3, x टू दी पावर n-1 होता है, 4 - 1 प्लस फिर 4C1 आएगा, x टू दी पावर x टू दी पावर n होता है ये, ठीक है? दिस इज 4C0 x टू दी पावर n। यहाँ पे क्या होगा, 4C1 x टू द पावर n-1, और y will come into here, y to the power 1 only. Then we have 4C2, यहाँ पे लिख दूँ 4C2 √3 की पावर हो जाएगी 4 - 2, क्योंकि x का पावर डिक्रीज होता है, ये x है एंड दिस इज योर y। सो x का पावर डिक्रीज होगा और y का पावर इंक्रीज होगा। So here √2 square plus 4C3, fine, √3 पे होल टू द पावर 4 - 3, y हमारा √2 है, √2 पे कितना पावर हो जाएगा, 3, ठीक है? फाइनली 4C4 √3 की पावर 0 हो जाएगी इस बार, लिखिए नहीं या नहीं लिखिए चलेगा, एंड √2 टू द पावर 4, ठीक है? √3 की पावर यहाँ पे क्या होगी, 0, 4 - 4, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, सो नो नीड टू राइट, यू कैन राइट अप टू दिस, ठीक है? ये हमने बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला की हेल्प से ये लिख लिया। अब हमारे पास पास्कल है, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, इन सबों की वैल्यू है हमारे पास, क्या थी? तो आप 1 3 3 1 3 वाला जानते ही हो, यहाँ से 1 4 6 4 1 कर लिया, ये अपना 4C0 1, 4C2 1 2 है। सो वैल्यू डाल दो, 4C0 इज 1, ठीक है? √3 पे होल पावर 4, ये कितना हो जाएगा डियर, 9,
अब ये कैलकुलेशन अब आपके हिस्से है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 4c1 इज 4 इंटू √3 पे होल क्यूब, ये आ जाएगा 3√3, ठीक है। √3 का होल क्यूब 3√3 एंड देन इट इज √2, ये √2 है, तो ये √2 लिख दीजिए, प्लस 4c2 कितनी हो गई, 4c2 इज 6, सो 6 इंटू √3 पावर √3 टू द पावर 2 यानी 3 हो गया, एंड √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस 4c3 इज अगेन 4 इंटू √3 की पावर 1, सो √3 एंड √2 की पावर 3 दैट इज 2√2 प्लस 4c4 इज 1 एंड √2 का होल 4 क्या लिखेंगे आप, 4, ठीक है। 4c4 इज 1 एंड √2 का होल 4 आ गया। अब देयर इसको ऐड कर दीजिए, रूट वाले रूट के साथ, नंबर वाले नंबर के साथ ऐड हो जाएंगे। सो व्हाइल एडिंग दिस वी विल गेट 49 प्लस ये √6 वाला एक पेयर है और ये √6 वाला एक पेयर है, 12 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 8, दिस इज 20√6, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो x प्लस वाई के होल टू द पावर n के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया है ना, बाइनोमियल के अकॉर्डिंग। 4c0 4c1, x का पावर डिक्रीज हो रहा है, y का पावर इंक्रीज हो रहा है, एंड फ्रॉम 4c0 4c1 की वैल्यू पास्कल से आप निकाल लेंगे, एंड देन यू सब्स्टिट्यूट एंड मल्टीप्लाई एंड एट द एंड यू विल गेट द आंसर विच इज 49 प्लस 20√6, क्लियर। सो इस तरीके से you can solve this type of a problem. Now I am taking the next question, look at this. Next question is question number 2 का first ले रहा हूँ here. Question is expand कीजिए, यानी बाइनोमियल को ब्रेक कीजिए। expand 2x square plus 3 होल टू दी पावर 4, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 4c0 x यानी पूरा है 2x स्क्वायर, ये पूरा x है एंड ये पूरा y है, तो 4c0 x टू दी पावर n 4 प्लस, बिकॉज प्लस है तो हर जगह प्लस ही होगा, 4c1 x टू दी पावर n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कर दिया, प्लस 4c, यहाँ पे फिर y भी आएगा डियर, सेकेंड टर्म में y अपीयर्स, यहाँ y भी लिखेंगे आप, लुक एट दिस, सो y कितना है डियर 3 प्लस 4c2 2x स्क्वायर पे पावर क्या होगी अब 4 माइनस 2 और 3 पे पावर 2 प्लस 4c3 2x स्क्वायर पे पावर हो गई 1, 4 माइनस 3 1 एंड 3 पे पावर q, और फाइनली 4c4 2x स्क्वायर पे पावर 0, 4 माइनस 4 कर लो, 0 लिखो या नहीं भी लिखो ये टर्म चलेगा, 3 की पावर क्या हो गई 4, ठीक है। अब हमारे पास पास्कल में फिर से पास्कल देख लो, 3 वाला आप याद रखो तो डायरेक्ट 4 पहुंच जाओगे ना, 1 4 6 4 1, ये पास्कल में आ गया नीचे वाला 4c0 4c1, वैल्यू डालिए, 4c0 इज 1, 2 टू द पावर 4 इज 16, x टू द पावर 8, पावर टू द पावर पावर मल्टीप्लाई, प्लस 4c1 कितना है 4 इंटू ये हो गया 8 इंटू एक्स टू दी पावर 6, 2 का होल क्यूब 8, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब 6 इंटू 3 प्लस 4c2 की वैल्यू क्या है 6, सो पुट 6 इंटू 2 स्क्वायर विच इज 4 इंटू एक्स स्क्वायर विच इज एक्स टू दी पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस
4c3 कितना है डियर? 4। ये हो गया 2 इंटू 2, क्योंकि 2 का पावर 1 है और एक्स स्क्वायर भी रह गया, इंटू 3 की पावर 3 है, दैट इज 27, प्लस 4c4 1 है, 2x स्क्वायर का पावर 0 1 हो गया, 3 टू द पावर 4 इज 81। ठीक है, अब फाइनली इसको x वाले टर्म को ऐड कीजिए, जो जहां जिसमें ऐड हो रहा है दैट वी कैन ऐड, और विल राइट द फाइनल आंसर। 16x टू द पावर 8, ये अपने को मिलेगा 96 x टू द पावर 6, प्लस ये आ जाएगा 216 x टू द पावर 4, प्लस ये भी आ जाएगा 216 x टू द पावर 2, and finally plus 81. So the expansion of 2x square plus 3 whole to the power 4 is this one, the last. ये जो हमने equals to लिखा, this one is the expansion. ठीक है, तो binomial theorem के help से you can expand these expansion. Fine. खुद से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, इनटू वगैरह खुद से कीजिए, तो दिस क्वेश्चन becomes very simple. Now see the next problem. The next problem I am taking question number 2 का सेकंड ही ले लेता हूँ, दूसरा ही है. This is your 2x minus 1 upon x whole to the power 6. इसको एक्सपैंड करना है डियर. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे. 6c0, ये हमारा क्या है? 2x या x बोल लीजिए, पावर 6 माइनस है तो प्लस माइनस होगा, पहला टर्म प्लस दूसरा माइनस. 6c1 2x टू दी पावर 6 माइनस 1, y आएगा 1/x, y 1/x आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे चलता है ऑल्टरनेट, प्लस 6c2 2x टू दी पावर 6 माइनस 2, और ये 1/x पे क्या हो गई? पावर 2. फिर माइनस होगा डियर 6c3 2x टू दी पावर 6 माइनस 3 इंटू वाई है 1/x टू दी पावर 3, प्लस 6c4, x हमारा क्या है? 2x, 6 माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा? 1/x टू दी पावर 4. फिर माइनस होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है. 6c5 2x टू दी पावर 6 माइनस 5, ठीक है, इंटू 1/x टू दी पावर 5. लास्ट टर्म प्लस होगा 6c6 2x टू दी पावर 6 माइनस 6. लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, क्योंकि वो तो जीरो ही होना है और पावर इसका जीरो है तो 1 हो जाएगा ही, एंड 1/x टू दी पावर 6. तो ये अपने बायनोमियल थ्योरम के हेल्प से इतने में एक्सपेंड किया. अब अपने को क्या चाहिए? पास्कल ट्राइंगल से 6c0 6c1 की वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इनटू करेंगे सबको. तो एक बार पास्कल को यहाँ पर बुला लेते हैं, वैल्यू देख लेते हैं. यहाँ फटाफट आप लिखने की प्रैक्टिस रखो. 1331 या 14641, ये आपके पास लिखा हुआ है पास्कल, तो वेरी गुड. ठीक है, एंड देन फाइनली 1 6 15 20 15 6 1, ये हमारा पास्कल का 6c0 6c1 6c2 सारे वैल्यूज आ गए. तो पहला 6c0 है तो 1 हो गया, यहाँ क्या रह गया? 2x टू दी पावर 6 माइनस 6c1 क्या है? 6 इंटू 2 टू दी पावर 5 इंटू x टू दी पावर 6 इंटू x टू दी पावर 5, 6 माइनस 1 है, एंड दिस इज 1/x, प्लस 6c2 कितनी है डियर? 15 इंटू 2 टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4 इंटू 1/x स्क्वायर.
नेक्स्ट आते हैं, थर्ड टर्म माइनस है, 6c3 इज 20, 20 इंटू 2 पे पावर 3 x पे पावर 3 इंटू 1 बाई x टू दी पावर 3 प्लस 64 इतना हो गया 15 इंटू 2 टू दी पावर 2 फाइन एंड x टू दी पावर 2 इंटू 1 बाई x टू दी पावर 4 माइनस अभी और बाकी है 65, so minus 65 इतना है डेयर 6 into 2 पे पावर 1, this is x and this is 1 by x to the power 5. Finally plus 66 1 होता है, 2x to the power 0 1 हो गया, क्या रह गया केवल 1 अपॉन x to the power 6. ठीक है, ये आपने पास्कल ट्राइंगल के हेल्प से वैल्यूज डाल दिए. अब आप पूरे को इनटू कर लीजिए एंड वी कैन राइट द फाइनल आंसर. 2 टू दी पावर 6 देख लो, 64 होगा ये, 64 x टू दी पावर 6 माइनस 32 इंटू 6 192. ठीक है, और ये x कैंसिल हो गया तो x टू दी पावर 4 प्लस ये कितना हो गया 8 8 15 जा 120 15 8 जा, और ये रह गया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 820 160 एंड एक्स की पावर दोनों ही कैंसिल होगी तो 160 ओनली प्लस 4 15 60 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12 अपॉन एक्स टू द पावर 4 एंड फाइनली 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6. ठीक है, सो दिस वे वी हैव दीज वैल्यूज. इसमें कहीं चेक कर लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. यहाँ पे 8 हुआ 16 हुआ सॉरी, तो ये 240 हो जाएगा. दिस इज 240. ठीक है, 15 इंटू 16 है ना ये, so that is 240 and this you can check in your textbook आंसर में भी देख सकते हो. ठीक है, so dear this way we can expand the binomial. ये होल 6 का आपने एक्सपेंशन समझा. पहले थ्योरम के हेल्प से प्लस माइनस लिख लो, फिर पास्कल ट्राइंगल की वैल्यूज आप यू कैन पुट 60 61 63 and then multiply everything and get the final answer. So I think for this all of you require a lot of practice. Once you do practice, no doubt it takes time, थोड़ा time लगता है इसको simplify करने में, but once you understand the thing then it becomes very simple. आप easily into वगैरह plus minus कर सकते हो. ठीक है, now I'm moving the next problem. Look at this sum is done. Now I'm taking the next problem. Look at this. Question number 3 in your textbook and 3 का first मैं ले रहा हूँ. This is root 3 plus 1 whole to the power 4 minus root 3 minus 1 whole to the power 4. इसकी वैल्यू चाहिए, यानी आपको दोनों ही ब्रेक करना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस साइन कैंसिल करने होंगे. तो 4c0, ठीक है, रूट 3 टू द पावर 4 प्लस 4c1 रूट 3 टू द पावर 3. 1 का पावर आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, आप चाहते हो तो लिख दो 1, या नहीं भी लिख के चलेगा क्योंकि b 1 है. 1 का कुछ भी पावर करोगे 1 ही होगा. प्लस 4c2 रूट 3 स्क्वायर, रूट 3 का पावर घटता जाता है, 4c3 रूट 3 प्लस 4c4 रूट 3 का पावर 0 हो गया, तो दैट्स 4c4 ओनली माइनस. अब ये रूट 3 माइनस 1 का 4 इसी की तरह लिख दो आप, प्लस माइनस साइन चेंज कर दो,
√3 to the power 4, ये माइनस होगा क्योंकि ये a माइनस बी है. 4c1 √3 to the power 3 प्लस 4c2 √3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4c3 √3, फाइन, 4c3 √3 एंड ब्रैकेट में ही है, प्लस कर दीजिए यहाँ पे, प्लस 4c4 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए. ठीक है. अब व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट तो देखो साइन चेंज होगा. जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो ये प्लस जो है ये माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा. ठीक है. और ये माइनस मैंने बोला. ठीक है. ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस. ठीक है. तो आप देखो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो गए. जितने इवन वाले हैं वो कैंसिल हो गए. 4c0 4c0 4c2 4c4, रह क्या गया, 2 टाइम्स ऑफ ऑड टर्म 4c1 इंटू √3 होल क्यूब, ये 2 टाइम्स हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4c3 वाला रह गया, 2 टाइम रह गया वो √3. करेक्ट. बाकी सब तो कैंसिल हो गए. 1 2 3, 3 टर्म कैंसिल हो गए और 2 टर्म प्लस वाला रह गया, तो 2 टाइम्स दिस रह गया. अब वैल्यूज डाल दीजिए. 4c1 4 होता है, √3 का होल क्यूब 3 √3 प्लस 2 4c3 4 होता है इंटू √3, ये 24 √3 प्लस 8 √3 कितनी हो गई, 32 √3. दिस इज द आंसर. ठीक है डियर. तो इस तरह में आप इसको सबकी वैल्यू नहीं देके पहले बाइनोमियल में ब्रेक कर दो, माइनस ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज होगा, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी के टर्म है वो ट्वाइस ट्वाइस आ गए, एंड देन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. दैट्स इट. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. आपको बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए ना, कि कैसे you have to expand the expansion. Correct. So now I am taking a next problem. Look at this. See, ये हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि आपको बाइनोमियल की एक्सपेंशन याद हो जाए, इसलिए इतने सम्स बनाई जा रही है. Got it? Now look at the next problem. The next is question number 4. Given that, prove that √3 plus √2 whole to the power 6 plus √3 minus √2 whole to the power 6 is equal to, this is whole to the power 6 here, is equals to 970. This we have to show. Correct. √3 plus √2 whole to the power 6 plus √3 minus √2 whole 6 कितनी होनी चाहिए, 970. So with the help of binomial we have to solve this. LHS ले लीजिए. This is LHS. We have √3 plus √2 whole 6 plus √3 minus √2 whole 6. अब आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे. 6c0 √3 to the power 6 प्लस, क्योंकि ये प्लस है तो सारे प्लस होंगे, 6c1 √3 to the power 5, 6 minus 1 और b आएगा, √2 आएगा, प्लस 6c2 √3 to the power 4 and √2 whole square plus 6c3 √3 to the power 3, ठीक है, this is 3 and √2 to the power 3. √3 की पावर घट रही है और √2 की पावर बढ़ रही है, प्लस 6c4 √3 स्क्वायर √2 whole 4, 6c5
√3 to the power 1 into √2 to the power 5 plus 6c6 √2 to the power 6। ये लिख दिया आपने। 7 टर्म्स होंगे, होल 6 है तो 7 टर्म प्लस, अब ये माइनस वाला ब्रेक होगा तो ऑल्टरनेट हो जाएगा सब कुछ प्लस माइनस, तो 6c0, इसको आप देख लो, पहला प्लस दूसरा माइनस, इस ऊपर वाले को ही प्लस माइनस कर दो आप। ठीक है, सो यहाँ तक पहुँच गए। अब आप देखो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑड वाले 6c1 6c3 6c5, ठीक है, 6c1 6c3 और 6c5 कैंसिल हो जाएंगे, सारे इवन वाले रह जाएंगे, वो डबल हो जाएंगे 2 टाइम्स, विच इज 2 टाइम्स ऑफ 6c0 √3 to the power 6 plus 2 times of 6c2 into √3 whole 4 into √2 square, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स यानी 2 इंटू है, 2 इंटू 6c4 रह जाएगा, √3 स्क्वायर इंटू √2 होल 4, ठीक है, और कौन सा रह जाएगा डियर 6c6 लास्ट वाला, 2 टाइम्स ऑफ 6c6 √2 to the power 6, ठीक है, ये वैल्यूज रह गए। अब आपके पास पास्कल है 6 का, 6 के पास्कल को आप लिख दें, ठीक है, 60 61 63 वैल्यू लिखे और इन सबों को इनटू करें आप। सो दिस इज 2, आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो पूरे में, ठीक है, और ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लीजिए। 3 पे 3 27, 601 होता है, 27 प्लस 2 कॉमन लिया है 62, यू हैव 15 इंटू 9 इंटू 2 प्लस 64 भी 15 है, 15 इंटू 3 इंटू 4 √2 का होल 4 होगा ये, प्लस 66 1 √2 पे होल 6 इतनी होगी 8। So finally, after adding and multiplying all these, you will get 970. This is your RHS. Correct? So there, इतनी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, प्लस और माइनस है तो टर्म गेट कैंसिल, सारे इवन वाले 2 टाइम्स हो गए, और पास्कल देख के आप वो वैल्यूज डाल दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, एंड यू कैन सॉल्व LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। चेक इट वंस अगेन, सब लोग चेक करो, वापस देखो, बाइनोमियल का एक्सपेंशन यूज किया, प्लस माइनस, बीच में प्लस था तो हमें ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड आफ्टर cancellation even terms are left,
which are 2 times of this. Fine. So this way we can show such question. तो आप इसमें एक एक्स्ट्रा सम पड़ा हुआ है जो आप घर पे ट्राई करेंगे, जो बचे हुए समय जो आप घर पे ट्राई कीजिए डेयर. ठीक है. Now I am moving your next question. This is question number 5. Question says, using binomial theorem, find the value of 102 whole to the power 4. See, although you know 102 को 4 बार आप इंटू करके वैल्यू निकाल सकते हो, बट हमें यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम यूज करके दिखाना है कि 102 का होल 4 कितना आएगा. ठीक है. सो लुक एट दिस. सी 102, दिस इज होल 4. आप इसको क्या करो, 100 प्लस 2 कर दो होल टू द पावर 4, क्योंकि 100 का स्क्वायर 100 का होल क्यों इजी है निकालना. अब इसको फॉर्मूला में तोड़ दो. 4C0, दिस इज 4C0 इसको फॉर्मूला में हम तोड़ लेंगे. दिस इज 4C0 x हमारा 100 है, 100 टू द पावर 4 आ गया. 4C0 x टू द पावर n प्लस 4C1 x टू द पावर n-1 इंटू y आता है, फिर प्लस 4C2 100 टू द पावर 4-2 एंड देन 2 स्क्वायर प्लस 4C3 100 टू द पावर 4-3 into 2 to the power 3 and finally 4C4 100 पे पावर 0 हो गया और 2 पे पावर 4 हो गया. ठीक है. एंड यू नो द पास्कल के वैल्यू से 4C0 1 है, 100 पे होल 4 यानी ये कितना हो गया, 100 का होल 4 यानी का मतलब दिस इज 100 टू द पावर 4 which means 10 का स्क्वायर एंड होल 4 which means 10 to the power 8. यानी 1 पे कितने जीरोस डालेंगे आप, 8 जीरोस डालेंगे. ठीक है. ये 4C1 तो 1 ही है, 8 जीरो डाल दीजिए. 2 4 6 8 प्लस 4C1 4 होता है, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 100 पे 3 यानी 10 पे 6, 10 पे 1 पे 6 जीरो डाल दीजिए. 2 4 6 प्लस 4C2 इज अगेन 6 और 6 इंटू ये 4 24 इंटू 1 पे कितने जीरो हो जाएंगे, ये 100 पे 2 है, 10 पे 4 हो गया यानी 4 जीरोस, 1 पे 4 जीरोस प्लस अब क्या रह गया, 4C3 1 है, 100 पे पावर 1, 4C3 is 4, 4 into 8 32, 32 into 100 यानी 3200 लिख दो डायरेक्ट, प्लस 4C4 1 होता है एंड दिस इज 60. अब इनको ऐड कर लीजिए आप, इनको आप ऐड करेंगे तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, रफ में ऐड कीजिए इसको. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 0 8 2 3 2 3 नहीं 2 4 आएगा यहाँ पे, 2 4 3 2 1 and 6, 1 0 8 2 4 3 2 1 6. तो आप बुक में भी आंसर चेक करके देख लीजिएगा whether this answer is correct or not. Fine.
तो बड़ा ट्रेडिशनल वे, घरगुती मेथड बोल सकते हो इसको, या आप 100 + 2 होल 4 कर दिया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे पूछा जाता 99 का होल 4, तो आप क्या करते, 100 - 1 कर लेते और फिर उसको ब्रेक करते आप, और जो प्लस प्लस को ऐड करते, माइनस को माइनस के साथ। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से ऐसे वैल्यूज निकाले जाते हैं। एक और वैल्यूज देख लेते हैं इसी फॉर्म में। ये 5 का फर्स्ट था। विल गो वन मोर सम, लुक एट दिस। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी देख ले। दिस इज गिवन 1.1 का होल टू द पावर 5 चाहिए, दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.1 कर दीजिए, 0.1 होल टू द पावर 5। इसकी वैल्यू चाहिए 1.1 टू द पावर 5 की। 1 + 0 तो आप फॉर्मूला लगाइए, 5c 0, 1 टू द पावर 5 प्लस 5c 1, 1 to the power 4, 0.1 it will come, 5c2, 1 का पावर 3, 0.1 का पावर 2, 5c3, 1 to the power 2, 1 to the power 2, and this is 0.1 whole to the power 3, 5c4, 1 to the power 1, and 0.1 to the power, this is 4. Finally, 5c5, 0.1 to the power 5, 1 का पावर 0 हो गया तो 1 ही लिखो, या ऐसे लिखो। अब हमारे पास पास्कल है, 1 4 6 4 1, तो ये 4 का था। 5 में क्या था, 1 5 10 10 5 1। ठीक है, so from here this is 1, 1 to the power 5 is 1, 5c1 कितना है, 5 into 0.1 plus 5c2 is 10 into 0.1 का स्क्वायर कर दो, ये कितना आएगा, 0.01 plus 5c3, this is also 10, 10 into 0.1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा डियर, this is going to be 0.001 plus 5c4 is 5, फिर 0.1 का होल 4, 0.1 2 3 and 1। ठीक है, plus 5c5 is 1 and this is 0.1 2 3 4 1। ठीक है, 0.1 का होल 5। अब आप सबको ऐड कर दीजिए and then you will get the final answer। सबको इंटू करना पड़ेगा, 5.5 10 into 0.1 10 into this, so इंटू करने पे देखो 1 plus this is 0.5 plus 10 into this, it is going to be 10 into 0.01, this is 0.1 plus 10 into this is 0.001 plus 5 into this, this is 0.1235 and plus 0.1234 and 1. Finally, when you add this all total, 1.61051, this value you will get with the help of binomial theorem। So अगर एग्जाम में लिखा आता है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, so you have to go by this way only, 1.1 whole to the power 5। correct dear? So I believe you understood
how we can expand the binomial with the help of binomial theorem of such powers 1.1 whole to the power 5. एंड दिस इनटू के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा. डोंट डू मिस्टेक बिकॉज यहाँ मिस्टेक बहुत होने की चांस है. ऐड करते समय भी थोड़ा केयरफुल रहना है. ठीक है. नाउ अब कुछ माइनस वाले भी देख ले. ये तो प्लस देखा हमने. नाउ लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन अब टेक्स्ट बुक के ही प्रॉब्लम्स हैं ये. यूजिंग बायनोमियल थ्योरम अगेन we have to find the value of first है हमारा 9.9 whole to the power 3. ठीक है. और दूसरा है 0.9 whole to the power 4. दोनों की वैल्यू निकालनी है. तो पहला हम करते हैं 9.9 whole to the power 3. इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस 0.1 whole to the power 3. Can we write? अब आप उसमें फॉर्मूला लगा दो. 3c0 1 to the power 3 माइनस है तो पहला प्लस दूसरा माइनस 3c1 1 to the power 2 और 0.1 आ जाएगा प्लस 3c2 1 to the power 1 and 0.1 to the power 2 minus 3c3 0.1 to the power 3. फाइन. अब वैल्यूज डाल दो. पास्कल का क्या है 1331 होता है 3 में. सो 1 माइनस 3 इंटू 0.1 plus 3c2 is 3 into 0.0 0.1 का स्क्वायर क्या हो गया 0.01 और ये माइनस 3 into 3c3 is 1. This is 1 sorry 3c3 is 1 into 0.001. ठीक है. प्लस वालों को एक साथ ऐड कीजिए, माइनस वालों को एक से सब्ट्रैक्ट कीजिए. सो दिस इज गोइंग टू बी 9.9 था ना. हमने क्या किया 1.091 क्यों कर दिया. ये 0.9 सॉरी ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे. ये 0.1 ले लो आप. इसको क्वेश्चन में 0.9 ले लीजिए. ठीक है. यानी ये 0.9 का 4 है ना तो इसको 3 ले लो. सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम. ऐसा समझो ये 0.9 पे होल क्यू है. ठीक है डियर. तो आप ऐसा लिख सकते हैं. मैंने यहाँ कुछ लिखा और यहाँ कुछ और लिख दिया. फाइन. तो यहाँ से आगे बढ़ो आप. सो अब आप इसको प्लस वाले को एक साथ ऐड करो. ये हो गया 1 प्लस 0.03 और ये माइनस वाले को एक साथ रखिए 0.3 माइनस 0.003. अब ऐड वगैरह करके देख लीजिए कितना हो गया. ये तो हो गया हमारा 1.03 minus this is going to be 0.303. फाइनली इसको माइनस कर लो आप 1.030 and 0.303. So this is 0.627. ठीक है. दिस इज द आंसर 0.9 का होल क्यूब. और 9.9 का कैसे करोगे आप. दिस यू ट्राई योर सेल्फ. 9.9 का होल क्यूब ये आप कर दोगे 10 माइनस 0.1 होल क्यूब. ऐसे कर लीजिएगा. ठीक है. थर्ड जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने सेकंड को क्या कर दिया 0.9 का होल क्यूब कर दिया. अब आपके पास 0.9 का होल 4 है तो वो भी आप कर सकते हो. बेसिकली क्वेश्चन में क्या था 0.9 पे होल 4 था.
तो आप इसी में होल 4 लगा दो एंड यू कैन गेट द वैल्यू। ठीक है, 0.9 का होल 4 आप ट्राई करना, फाइंड हियर। So this way we can, using the binomial theorem, we can get these point k whole cube whole 4 you can calculate। ठीक है, 0.9 होल 4 कर ही लिया जाए क्या, 3 तक तो किया ही है आपने, 4 में 4c0 4c1 लगा लीजिए और प्लस माइनस इंटू करके सिंप्लीफाई कीजिए। आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप जरूर कर पाएंगे ये 0.9 का होल 4। ठीक है, नाउ अब हम एक और प्रॉब्लम पे आते हैं। लुक एट दिस, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने 0.9 पे क्यूब कर दिया। कई बच्चे बोले नहीं सर 1/4 कर ही दो, तो लो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमने 2 क्वेश्चन लिखा था उसमें से एक कर देता हूँ मैं। लेट्स से मैं 0.9 का होल 4 फिर से करता हूँ, वहाँ होल क्यों किया था, ये होल 4। ये कैसे होगा, 1 माइनस 0.1 का होल 4, फॉर्मूला लगा देंगे 4c0, 1 का पावर लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, प्लस माइनस होगा 0.1 पहली बार आएगा, प्लस 4c2 0.1 पे होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर, माइनस 4c3 0.1 पे 3 प्लस 4c4 0.1 पे होल 4। दैट्स इट, ये आ गया, वैल्यूज डाल दो। 4c0 क्या है 1, 4c1 4 होता है, 4 इंटू 0.1 प्लस 4c2 इज 6 एंड 0.1 का स्क्वायर हो गया 0.01, 0.01 minus 4c3 is 4 and this is 0.001 and 4c4 is 1, 1 into 0.4। ठीक है, अब इसमें से प्लस वाले को एक जगह कलेक्ट कीजिए और माइनस वाले को एक जगह। सो दिस इज गोइंग टू बी, इस तरह से हो जाएगा आंसर आपका। 1 पॉइंट पहले प्लस वाले को ऐड कर लेता हूँ, 0601 माइनस, दोनों माइनस को एक जगह ऐड कर लिया तो ये हो गया 0.404 एंड फाइनली दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिल जाएगा 0.6561। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मैंने एक कर तो दिया आपको 0.9 का होल 4, उधर गलती से 4 की जगह 3 लिखी गई थी, तो इसको रेक्टिफाई करके मैंने आपके एक्सरसाइज का ये सम 6 का, ये आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 का 2। फाइन, तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये इस तरह का एक्सपेंशन क्लियर हो गया। प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी यू विल बिकम अ परफेक्ट। और एनडीए क्रैक करना है, एनडीए ऑफिसर बनना है, तो ये सब दिक्कतों से तो बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि यू हैव टू फेस अ बिगेस्ट चैलेंज। यू हैव टू पूरी इंडिया को सेव करना होता है, पूरी इंडिया की रक्षा करनी होती है आपको, तो ये चैलेंज दिया जाएगा इन फ्यूचर। सो ये चैलेंज तो बहुत सिंपल है डियर, ये तो कुछ नहीं है, दिमागी चैलेंज है, थोड़े प्लस माइनस इंटू का खेल है। ये थोड़ा अच्छे से कर गए यहाँ तो पूरी लाइफ आप अच्छे से एंजॉय करेंगी, बिकम एन एनडीए ऑफिसर। फाइन, सो विद दिस विशेस आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन। ठीक है, तो आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर गियर्ड अप, रेडी हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, बोर तो नहीं हो गए? यस ऑफ कोर्स, कई बच्चे बोर हो जाते हैं ये सब टॉपिक को देख के, बट देयर ये सब चैलेंजिंग है, करो आप। करेक्ट, नाउ लुक एट दिस, वी हैव नेक्स्ट सम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन नंबर में
ऐसा है लिखा है कि expanding without expanding find the value of find the value of किसकी वैल्यू चाहिए भाई? फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वन होल फोर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू एक्स माइनस वन प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ x plus 1 whole square x minus 1 whole square minus 4 times of x plus 1 into x minus 1 whole cube plus x minus 1 whole to the power 4. ठीक है, तो विदाउट एक्सपेंशन वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, और हमें बोल दी गई आप एक्सपेंड नहीं कर सकते. बट अब आप देखो, सबसे पहले टर्म का पावर क्या है? 4 है. फिर 4 से वो क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, 1 हो रहा है और 0 हो रहा है. यानी मैं इसको पूरे को a लूँ, ठीक है, a टू द पावर 4, a टू द पावर 3, और मैं b ले लूँ x माइनस 1 को, तो b की पावर बढ़ रही है, लुक एट दिस, और a की पावर घट रही है. और अल्टरनेट साइन क्या है? प्लस पहला है, माइनस प्लस माइनस. दैट मीन्स कि ये मुझे a माइनस b का पावर कितना देने वाला है? पहले पे पावर क्या है? 4 है. तो आप किसी का भी एक्सपेंशन स्टार्ट करते हो, जैसे a प्लस बी 4 ही करते हो, तो आप पहला क्या लिखते हो? 4c0 a टू द पावर 4. यानी ये पूरी एक्सपेंशन की पावर क्या होनी होती होगी? 4. ठीक है, और वहाँ जहाँ पे मैंने a क्या सपोज कर लिया, a हमने क्या लिया है इसमें? x प्लस 1. ठीक है, और b हमने क्या देखा इसके अंदर? माइनस x माइनस 1. ठीक है, क्योंकि ये a माइनस बी है. अब आप बोलोगे सर ये 4 6 का क्या है? तो ये पास्कल की वैल्यूज़ है. 4c0, 4c1, 4c2. 4c0 क्या हो गया? 1, 4c1 4, 4c2 6, 4c3 4 एंड 4c4 1. ठीक है, वो पास्कल की वैल्यूज़ हो गई. करेक्ट. तो ये इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने क्या कर दिया? a माइनस बी का होल 4 लिख दिया, वेयर a आई टुक x प्लस 1 ये लिया, और b को मैंने x माइनस 1 लिया, तो इस पे पावर होल 4. अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 होल 4 लेफ्ट विथ 2 to the power 4 which is 16. 16 is the answer. x और x कैंसिल. ठीक है, सो सी आप इतने को एक्सपेंड थोड़ी करोगे, ये पता करोगे ये किसका होल 4 है या होल 3 है, तो ये इसका हिंट आएगा आपको. सबसे पहला जो पावर होगा, ठीक है, ये पावर देखा आपने, 4 3 2 1, और इधर 0 हो गया. बी का पावर 1 2 3 और ये 4. फिर प्लस माइनस देखना है, दैट मीन्स बीच में हमें माइनस देना है. फिर हमने ए को पूरा कर लिया x प्लस 1, बी को कर लिया x माइनस 1. ठीक है, and this is x plus 1 minus x minus 1, 16 came. Fine. Look at this. We'll have a next problem. इसी फॉर्मेट पे है, वो भी चेक कर लेते हैं. सेवेंथ का सेकेंड क्वेश्चन. अगेन विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू चाहिए 2x माइनस 1 होल 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2x minus 1 whole cube into 3 minus 2x into 3 minus 2x plus 6 times of 2x minus 1 whole square, and here it is 3 minus 2x का whole square plus 4 times of 2x minus 1 into 3 minus 2x का. अब आपको पकड़ में आ रहा है कि ये कैसे बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है. एंड फाइनली
3 माइनस ब्रैकेट है यार, 3 माइनस 2x होल टू द पावर 4। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। तो आप इस पूरी वैल्यूज को इक्वल टू, ठीक है, इस पूरी वैल्यू को यहाँ फिर से पावर 4 दिख रहा है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो इस पूरे को मैं a ले लेता हूँ और इसको मैं b ले रहा हूँ। ठीक है, सब जगह प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो ये a प्लस, सॉरी एक मिनट ये जरा, ठीक है, तो ये बेसिकली ये 2 है, 2x टू द पावर 3। तो मैं क्या बोल रहा था, ये कि ये a और ये b ले लिया, तो और सब जगह 4c0 4c1 4c2 पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस पूरे को a, जैसे पहले लिखा था a प्लस b होल टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, वेर a मैंने क्या लिया है 2x माइनस 1 एंड b क्या है हमारा 3 माइनस 2x, और इसके ऊपर पावर क्या लिख दूंगा 4। देखो a प्लस बी का होल 4 खोलोगे तो ऐसे ही जाएगा, ये 4c0 4c1 है, 4c2 है, ये 4c3 है एंड 4c4 1 होता है। ठीक है ना, 4c0 ये हो गया, 4c1 ये हो गया, दिस इज 4c2, दिस इज 4c3 एंड दिस इज 4c4, जो 1 है। सो फिर से डियर यहाँ पे क्या रह गया 2 टू द पावर 4 which is 16, correct? So 16 is the correct answer. Fine. So what we have observed कि without expanding उसके फ्लो को समझना है कि ये किस फ्लो पे जा रही है। होल 4 सबसे पहला पावर तो होल 4 होगा, देन ए और बी अपने को डिसाइड करना है। ए हमारा 2x माइनस 1 है, बी क्या है 3 माइनस 2x, और प्लस है हर एक टर्म को, तो ए प्लस बी का होल 4 आ गया। फाइन डियर, सो आई बिलीव आप यहाँ तक पूरी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में हमने जो सम्स लिए हैं आज, you have understood. ठीक है, now I am going to give you another 3 sums as a homework that all of you will try. Look at this homework, लिख लीजिए अब। now the time for homework, जो आप करते हैं बहुत अच्छे से, everyone is doing, it's a good thing, and clap for everyone. Thank you very much to everyone, all of you are doing very neatly, बहुत कम समय में अच्छे से करते हो। For this lot of thanks to all of you, lot of blessings। ऐसे ही आप आगे की भी सम्स करते रहें, होमवर्क बनाते रहें। फाइन डियर, तो हम पहला एक लेंगे एक्सपेंड। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग एक्सपेंड। एक्सपेंड कीजिए इसको, इसको एक्सपेंड कीजिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x या 4x ले लो, 4x प्लस y अपॉन 4 होल टू द पावर 5, इसको एक्सपेंड करेंगे आप, एक्सपेंड। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2 प्लस √3, शो दैट करना है, शो दैट या प्रूव दैट। सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट 2 प्लस √3 होल टू द पावर 4 प्लस 2 माइनस √3 होल टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 194। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन इज 1 point using binomial expansion, using binomial expansion value of
क्या चाहिए वैल्यू? 1.02 होल टू द पावर 4, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, 1.02 होल टू द पावर 4। सो दीज थ्री सम्स इज योर होमवर्क। करेक्ट? तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस, पीछे वीडियो को देखो 2 बार 3 बार। ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट, इस तरह के सम्स हमने किए हैं आज, तो आई बिलीव यू विल बी एबल टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर भी लिख देता हूँ। सो सपोज वंस यू गेट द आंसर तो यू कैन मैच। ठीक है, 1.02 का होल 4 है ना। सो आंसर इज, लुक एट द आंसर ऑफ थर्ड वन। थर्ड का आंसर लिख दूँ 1.08243216। Fine, this will be the answer. Third का आंसर है। Fine dear. So in the next class we will discuss the next article, what we call general term of a binomial theorem. Next class में we will discuss general term। ठीक है, जनरल टर्म हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मीनवाइल गो थ्रू कीजिए पूरी वीडियो को, और ये तीनों ही होमवर्क बड़े एक्साइटमेंट से, बहुत उत्साह भर के बनाइए। डोंट टेक एज ए बर्डन। enjoy these sums and find the solution and post it in our group. Fine dear. Actually, being a teacher, we are waiting that when students are going to send the answer. That is what a confirmation, that हम confirm होते हैं कि all of you understood the topic. Correct? So, best wishes, best of luck to all of you. पूरी वीडियो को गो थ्रू करो, और ये तीनों ही सम आप ट्राई करके पोस्ट करो। थैंक यू वेरी मच।